Hello everyone. Here we are in this late night because in afternoon or evening we were so busy hospital duty, but no problem. Now from today we will start LMT last minute treasure, and for the last minute treasure we will discuss most important. I can say it's most super important. Held one liners, and along with one liners, मैं उस टॉपिक पे क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है आई विल डिस्कस. I mean, you have to keep one pen and paper with you, and the remaining 30 days, you have to analyze some other important question also on the basis of that what NBE can ask or how it can be helpful for you. तो जो जैसे जैसे मैं क्वेश्चन आगे की तरफ डिस्कस करते हुए बढ़ूंगा, आपको ये भी मैं बताऊंगा कि हाउ क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड on those topics. So I hope it will be very helpful for you. See, this type of one-liner you cannot find anywhere in whole market. I mean, I can say that in the whole FMG, uh, क्या बोल सकते हैं उसको, स्टूडेंट्स के बीच में भी ये पीडीएफ ऐसा कहीं नहीं होगा. एंड आई नो दिस पीडीएफ is in market. Many are just posting and uploading on the YouTube, but this is the genuine and real PDF of Booster series, FMG वाला. बहुत सारे लोग उसको अपने ग्रुप पे, अपने पेज पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन day 1 day 2 डाल रहे हैं, but I already reported many of them, and many students of Booster series already reported on those channels. And like YouTube पे भी वो उसको लॉन्च करके, और the way they are saying कि these are all previous year question and PYT based, very important and all, and they are discussing on their YouTube channel. And I gave copyright also, and like tomorrow or day after tomorrow in a mass way, I will select some 3 4 channels and I will start giving copyright to them with those good and active students. All students of Booster series, they will all claim copyright over there. So okay, no problem. I think we should start from first question. See, I know many of the students have this PDF. बहुत सारे स्टूडेंट वन लाइनर उसको पढ़ भी रहे होंगे, बट many students are not knowing about how to approach if clinical question will come from those topics. अगर clinical question उस टॉपिक पे आता है तो किस टाइप से क्वेश्चन को अप्रोच करना है. वन लाइनर्स बहुत सारे स्टूडेंट्स 50% पढ़े होंगे या स्टार्टिंग के 100 200 क्वेश्चन पढ़े होंगे, बट जब वो क्लिनिकल क्वेश्चन आती है तो फिर वो वहाँ पे वो कंफ्यूज हो जाते हैं. लाइक उनको हेल्प वहाँ से नहीं हो पाता है, मीन्स वो कोऑर्डिनेट कर नहीं कर पाते. क्लिनिकल क्वेश्चन वन लाइनर से भी सॉल्व किया जा सकता है विद द हिंट. इन बूस्टर सीरीज ग्रुप आई ऑलरेडी discussed many time. I already told how to approach big clinical question with those small hints. Yes, I will share this PDF in a group. और बहुत बार हमने बूस्टर सीरीज डिस्कशन ग्रुप में मैंने वो बताया भी है कि कैसे क्लिनिकल क्वेश्चन बड़ा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो वन लाइनर्स कहाँ कैसे हेल्प करता है हिंट को पकड़ने के लिए. तो उस बेसिस पे मैं स्टार्ट करूंगा, बिकॉज वन लाइनर्स तो सब पढ़ते हैं, वो 1000 1200 पीडी क्वेश्चन तो कोई नहीं कर पाता. बट कैसे आपका कंप्लीट हो पाएगा जब इसको हम एक क्लिनिकल बेसिस पे, मतलब लाइक वन लाइनर्स को क्लिनिकल क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, अगर उसको लेके चलते हैं तो बहुत आपको हेल्प होगा एग्जाम में. एंड ट्रस्ट मी, दीज सेशंस विल बी वेरी हेल्पफुल. बहुत बार आपको ऐसा लग रहा होगा कि वन लाइनर मेरे पास है, मैं तो खुद से कर लूंगा, कर लूंगी, बट आपको जब क्लिनिकल क्वेश्चन दिखेगा वन लाइनर यू कैन डू. अगर क्वेश्चन वन लाइनर टाइप का कुछ कुछ आता है तो, बट क्लिनिकल क्वेश्चन में आपको हेल्प तभी होगा जब आप वन लाइनर्स को इंटीग्रेट करना जानते होंगे वहां से, मतलब अच्छा इंटीग्रेशन होना चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट. आई थिंक दिस इज आवर फर्स्ट सेशन ऑफ LMT लास्ट मिनट ट्रेजर. वी है ट्रेजर, यू नो इट्स मीन्स खजाना. यहाँ सब कुछ है इसमें, बस आपको एक सही वे से अप्रोच करना है इस PDF को. इसलिए हमने ये सेशन स्टार्ट किया.
So हम लोग, as it's very late now, no problem. We will start. I think it's visible for all of you. Can you confirm, please? Can anybody will confirm? Yeah, visible. So it's a rapid one-liner. Although I will share a noted one also on noted also, but now this is the real and genuine PDF of बूस्टर सीरीज। एक एक क्वेश्चन में हमने काफी हार्ड वर्क किया है, काफी सोच सोच के समझ समझ के इसको मतलब मैंने रेडी किया था। सो विल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन हियर इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कोलेरा इन्फेक्शन, इट्स डॉक्सीसाइक्लिन। आपको पता होगा कि कोलेरा इन्फेक्शन पे व्हेनेवर दे विल आस्क क्वेश्चन फ्रॉम कोलेरा, you have to keep in mind that from cholera topic they can ask, they will give you hint as watery diarrhea, vomiting and nausea type of history. If they will ask like medium, you don't have to confuse. I already discussed media for cholera infection in topic section. So आपको इस कोलेरा टॉपिक पे डॉक्सीसाइक्लिन, इट्स ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ कोलेरा इन्फेक्शन इज डॉक्सीसाइक्लिन। सो आपको इसके अलावा और क्या क्या क्वेश्चन हेल्प हो सकता है आपके एग्जाम में, वो मीडिया पूछ सकते हैं। पार्टी डायरिया दे देंगे और ड्रग भी दे देंगे कि ये ड्रग यूज किया जाएगा, बट मीडिया कौन सा यूज किया जाएगा डायग्नोसिस के लिए। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन दिस। वेक्टर ऑफ कालाजार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एनबी, दे विल गिव लाइक हिस्ट्री ऑफ बिहार का ऐसा कुछ केस है और किसी को कालाजार हुआ है और वेक्टर पूछेगा तो आपको सैंड फ्लाई क्लिक करना है। दे विल आस्क लाइक which one of the following is vector of कालाजार। आई मीन मेरा ये डिस्कस करने का आइडिया इसलिए आया क्योंकि आपको एटलीस्ट पता चलेगा कि किस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है इस पे, और कौन कौन सा क्वेश्चन। ऑल्दो एंड बी इज अनप्रिडिक्टेबल बट वी कैन एनालाइज इजिली कि किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है इस पे। कम से कम इतना आपको ध्यान रखना है। मोस्ट कॉमन कैंसर ऑफ मेल इन इंडिया, लीप एंड ओरल कैंसर। फीमेल के लिए इस बार पूछा था मोस्ट कॉमन कैंसर इन फीमेल, सो कंफ्यूज नहीं होना है, ब्रेस्ट कैंसर ध्यान रखना है। मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंसी पूछता है तो वहाँ पे सर्वाइकल कैंसर कैंसर होता है, बट मोस्ट कॉमन अगर फीमेल में कोई कैंसर है इंडिया में तो ब्रेस्ट कैंसर आपको ध्यान में रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट कैंसर सर्विक्स क्लिक करके आए थे। मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट फॉर माइसेनिया ग्रेविस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई मीन दे विल गिव द हिस्ट्री ऑफ कि लाइक उसको चलने में दिक्कत हो रही है, सुबह उठता है तो धीरे धीरे उसकी एनर्जी लॉस होते जाती है और काम होते होते वो काफी थक जाता है, और उस टाइप का हिस्ट्री वो बड़ा क्लिनिकल क्वेश्चन दे सकते हैं। उसके लिए घबराना नहीं है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। लाइक इफ दे विल गिव द क्लिनिकल क्वेश्चन लाइक दिस, big clinical question, you not need to worry about that. And they will ask the most sensitive test for single fiber electromyography. Can anybody will write like most specific test for myasthenia gravis? Please, if anyone can write in comment box. Most specific test for myasthenia gravis. आप बोल भी सकते हो, if you want you can just say with audio. रहेगा इस पीडीएफ से कितने क्वेश्चन आएंगे? इस क्वेश्चन से एटलीस्ट इतना जरूर आएंगे कि आपको 130 से 150 पे जरूर ला देगा है। सो आपको ऐसे सोचना है, एवरीथिंग इज अनप्रिडिक्टेबल, बट इतना जरूर है मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, अगर आप 130 से सोचना है कि मेरा 130 आएगा, अगर इसको कर लिए तो 150 तो जरूर हो जाएगा। एटलीस्ट यू हैव टू ट्रस्ट। एनीबडी हु कैन आंसर मी? यस, एसीएच हेड्रोफोन। एसीएच, इट्स वेरी गुड, इट्स स्टाइल
कोलिन वाला वो टेस्ट इंपॉर्टेंट है अगेंस्ट एंटीबॉडी, वी हैव टू चेक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपको ये जरूर ध्यान देना है, सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक, यू हैव टू नो एनी हाउ। सो नेक्स्ट इज स्नैक बाइट का नो आरडी, डेली रिक्वायरमेंट जो कैल्शियम का होता है प्रेग्नेंट वुमेन में 1000, आपको ये याद रखना है। एटलीस्ट कुछ याद नहीं हो 1000 आपको माइंड में रखना है। अगर ऐसा कुछ कैल्शियम का कुछ पूछता है तो जनरली ये 1000 का ही ऐसा रहता है, आपको ये ध्यान में रखना है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इन इंटरसेक्शन इज यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी। चाइल्ड का केस होगा कभी भी, आपको ये याद रखना है, ये टर्म अगर आपको दिखता है तो आपको ये माइंड में रखना है, चाइल्ड का केस होगा एवरी टाइम। जनरली वो चाइल्ड का ही केस देते हैं और फिर पूछेंगे उसमें बड़ा सा दे देंगे कि उनको वो स्टूल में प्रॉब्लम हो रही है, इस कलर का स्टूल है, डिफरेंट सिनेरियो दे विल गिव, दे विल आस्क लाइक इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। सो अल्ट्रासोनोग्राफी आपको ध्यान में रखना है। सांप काटा हुआ है, स्नैक बाइट, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस एवरीवन नोज इज लाइक एंटी वेनम। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, ये आपको याद करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको ये काफी इंपॉर्टेंट है, टाइप ऑफ कोलाजन इन स्केलेटल मसल। मैं थोड़ा रफली लिख रहा हूँ जल्दी जल्दी क्योंकि लाइक यू हैव टू कवर मोर एंड मोर। तो टाइप 4 यू हैव टू रिमेंबर, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 आपको ये माइंड में रखना है। आप इतना ध्यान में रख लो कि ये काफी इंपॉर्टेंट है। wherever I will mark red you have to go through nicely, आपको यहाँ पे तो ये ध्यान देते हुए आपको जाना है। ट्रीटमेंट ऑफ सब अरेक्नोइड हेमरेज, कॉइलिंग, आपको ये ध्यान रखना है, ये टर्म कॉइलिंग वहाँ बढ़िया रहेगा, अर्ली सर्जरी एंड कॉइलिंग, ये आपको ध्यान में रखना है। साइड इफेक्ट ऑफ क्लोजापिन, साइलोरिया, कॉन्स्टिपेशन, कार्डियोमेगाली, दे विल आस्क क्वेश्चन लाइक दिस, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर साइड इफेक्ट्स ऑफ क्लोजापिन एक्सेप्ट, ये ऑप्शन में रहेगा, ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, हो सकता है एक दूसरा ऑप्शन दे दे। इस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम होता है, मैंने इसलिए स्टार्ट किया है इसको डिस्कस करना है इस पीडीएफ को, किस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। जाइम मार्कर ऑफ विटामिन B2, ग्लूटाथायोन रिडक्टेज, आपको विटामिन B1 का यू हैव टू रिमेंबर फॉर विटामिन B1, विटामिन B7 वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन टॉपिक सेक्शन इन डिटेल्स, बूस्टर सीरीज के टॉपिक सेक्शन में ये डिटेल में डिस्कस्ड है, ये भी डिटेल में डिस्कस्ड है, ये भी डिटेल में डिस्कस्ड है, ये भी डिटेल में, ये भी है, ये भी है। तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। ची स्क्वायर टेस्ट इज क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टेस्ट, आपको ये ध्यान में रखना है। दिस टाइम from last 3-4 exams they started asking more conceptual question। सी स्क्वायर टेस्ट हो सकता है केस दे दे बड़ा सा और पूछे कि कौन सा टेस्ट है, एनोवा टेस्ट है, पेयर्ड एंड पेयर्ड कौन सा है, सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट आल्सो, बट दे कैन लाइक start confusing you, like ची स्क्वायर टेस्ट is fill in the blanks type, qualitative test, quantitative test, subjective test, objective test, so qualitative test you have to remember। डॉग बाइट का केस है, अनवैक्सीनेटेड है, डोज एंटी रेबीज वैक्सीन 1 ml, 5 doses इन द डेट, लाइक इस ये तो काफी डिटेल्स में वो डिस्कस है टॉपिक सेक्शन में। एटलीस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस 5 डोज, 0 days पे, 3 पे, 7 पे, 14 पे, 28। इथेनॉल पॉइजनिंग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो फैक्ट्री या कुछ केस दे देंगे, वो अल्कोहल पीने गया, लाइक ऐसा ऐसा अल्कोहलिक टाइप का हिस्ट्री, एंड दे विल आस्क लाइक मिथेनॉल पॉइजनिंग इज सीन like treatment of choices, or they will ask like antidote for this is omeprazole। Investigation of choice for insulinoma, इंडोस्कोपी, अल्ट्रासोनोग्राफी। इंसुलिनोमा के अलावा आपको आई एम गोइंग थ्रू टॉपिक बेस्ड अप्रोच ऑल्सो, आपको ये टॉपिक ध्यान में रखना है। इसके अलावा भी वीआईपोमा, ग्लूकोग्रामा, वो आपको ध्यान में रखना है, टॉपिक सेक्शन में ऑलरेडी डिस्कस्ड है, वो आपको अच्छे से करना है। Efficacy of drug maintained in which phase of clinical trials? Phases of clinical trials very important. This time they can ask stage 2, इसका स्टेज 1, स्टेज 3 भी आपको माइंड में रखना है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर माइग्रेन, देयर आर लॉट्स ऑफ ड्रग बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज बीटा ब्लॉकर्स, प्रोप्रानोल,
Verapamil also you have to remember. Like these drugs, they will ask like all of the migraine. They will give the case of migraine, and they will start asking that okay, बताओ ये कौन सा drug use नहीं करते. They will also give like sumatriptan and all. So you don't have to confuse. At least ये drug वहाँ पे option में ये और ये देते ही देते हैं most of the time. Type of collagen we already discussed here. Type of collagen in skeletal muscle, but now type of collagen in osteogenesis imperfecta. Type 1. Blue eyes की history. Broken bones, most common fractured bone, मतलब fracture bone बहुत ज़्यादा fracture easily brittle हो रहे हैं. ये वो इस टाइप का कुछ history रहेगा. आपको ध्यान में रखना है कौन सा collagen होगा उसमें. Type 1. Nowadays what NB is doing is like they are giving everything, all the clinical scenarios. First of all, you have to find out the diagnosis. What is the main diagnosis? And then after that, you have to identify the main answer. I mean, they will ask treatment, or they can ask like anything, any vessels involved, or like this type of question they are asking nowadays. First of all, you have to find out diagnosis, and then on the basis of diagnosis, you have to find out the treatment also. Folic acid days for pregnant women to prevent neural tube defect. Everyone knows 400 mcg daily, microgram daily. Mechanism of action of diphtheria toxin. It's like July 24 question. Inactivating elongation factor 2 via resolution from NAD. Very important. They are repeating like 6 to 7 questions every time. Maybe from microbiology they can ask again. रेप का केस है. एमटीपी कहाँ तक हो सकता है? एमटीपी टॉपिक यू हैव टू रिवाइज नाइसली. ये एमटीपी आएगा फिर से इस बार. हो सकता है रेप केस का नहीं पूछ दे कि अगर बच्चे को कुछ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कैसा प्रॉब्लम है, कितना वीक. तो इस टाइप से क्वेश्चन बेसिस अप्रोच पे आपको करना है. डोज ऑफ मिफेप्रिस्टोन इन एबॉर्शन 200 to 600 mg oral. Misoprostol is 800. So it's very important, I think, this time. And they will ask question from here. Doses of mifepristone in abortion and misoprostol का. Drug of choice of candida infection, fluconazole. इसमें आपको कैसे मतलब लाइक हिस्ट्री देंगे वो कार्डियोवाइड डिस्चार्ज है ऐसा ऐसा करके, और फिर उसमें पूछते हैं कि ड्रग ऑफ चॉइस क्या है. इसमें आपको एक और चीज़ ध्यान देना है. जब ये आप सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज पढ़ रहे हैं तो आप देख लो कि मेल पार्टनर इसमें ट्रीट करते हैं, इसमें नहीं करते. मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो फार्मूला, नंबर ऑफ मैटरनल डेथ बाई टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ इनटू 1 लाख. ये आपको याद रखना है. इन द नॉर्थ ईस्ट एरिया मलेरिया टॉपिक. दिस टाइम दे विल आस्क अबाउट ड्रग फॉर श्योर. तो आपको एक नॉर्थन रीजन में, फिर नॉर्थन रीजन के अलावा कौन कौन सा ड्रग है वो ध्यान रखना है. बट कंफ्यूज करने के लिए नॉर्थन का मोस्टली जनरली पूछते हैं. अर्थामेटर, लुमिफेंट्रिन एंड प्रिमाक्यून, ये आपको याद रखना है. Dermatoma of diaphragm, everybody knows it's T10. It's very important. Maybe they will show you the diaphragm region and they will give the arrow and they will ask like dermatome कौन सा involved. Rheumatoid arthritis comes under this type of hypersensitivity reaction. Like new update is like type 3 आपको दिमाग में रखना है. Theme of World TB Day 2024. Yes, we can end TB. Type of epithelium in trachea. I think it's July 24 questions. Related pseudo stratified columnar epithelium. They can repeat again. So it's very important. अभी तक ये 30 क्वेश्चन तक में अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है सो यू कैन आस्क. Pitchard regimen, MgSO4 dose, it's 4 gram IV over 3 to 5 minutes. Then the next dose like the 10 gram IM, 5 gram in each buttock. The cursor of niacin, everybody knows is tryptophan. Every time they are giving question from niacin deficiency. This time also they can give question from niacin, but they will confuse you like tryptophan का कुछ ऐसा केस देके they will try to confuse, but niacin deficiency आपको याद रखना है. ड्रग ऑफ चॉइस फॉर रेट सिंड्रोम इज ट्रोफेनेटाइड. बहुत बड़ा क्लिनिकल केस दे सकता है और पूछे रेट सिंड्रोम इज सस्पेक्टेड. व्हाट इज द ड्रग फॉर दिस कंडीशन? सो यू हैव टू रिमेंबर दिस. You have to remember like this RT. Most radio-resistant tumor is melanoma, but for radio-resistant and radio sensitivity,
from last two exams, and they are always asking question. तो रेडियो रेसिस्टेंट और सेंसिटिव ट्यूमर कौन सा है वो आपको याद रखना. मोस्ट कॉमन orbital tumor in children, it's retinoblastoma. Every time pseudo-winster rosettes is seen, ऐसा ऐसा कुछ करके वो कंफ्यूज करते हैं. ल्यूकोप्लेकिया इज सीन, इस टाइप से मतलब कुछ ऐसा देता है. ल्यूकोरिया इज ल्यूकोप्लेकिया, नो, इट्स ल्यूकोरिया इज प्रेजेंट. सो आइडेंटिफाई द डायग्नोसिस. ये रेटिनोब्लास्टोमा, इसका जीन आपको याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है. एडल्ट यू कैन रिमेंबर और नॉट रिमेंबर, इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट एटलीस्ट they can give you one liner also, like retinoblastoma were previous topic, it's very important. Maybe they will give the clinical case, or else like they will ask most common or vital tumor in children. Active principle of castor is ricin. Plant poisoning से जितने भी ये castor हैं, datura poisoning, you have to go through nicely this time. 100% one question they will ask from this plant poisoning. अभी तक 36 क्वेश्चन में बहुत बार मैंने ऐसा बोला कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना नहीं. बिकॉज ये जो मैंने डिस्कस किया है, ये सारे these all are on the basis of previous year topics and previous year questions. So these all topics are important. अगर एक टॉपिक में डिस्कस कर रहा हूँ तो उसमें आपको ध्यान क्या क्या रखना है वो आपको करना है, क्योंकि there are lots of one liners. If I will start discussing each topic in details, it will be very difficult to cover all one liners. So at least I am saying that कि अगर आप वन लाइनर को तो पढ़ ही रहे होगे, रट रहे होगे, बट रटने से अलावा you have to understand it nicely, like in clinical question how it can be helpful. That's why I am making you understand this clinical approach. जैसे मैंने यहाँ बोला कि रेटिनोब्लास्टोमा pseudowinston rosette is present, or if they will ask like leukorrhea, they will give is like a history and all. उस type of clinical question they can frame. और इसके gene involved भी पूछ सकते हैं, like they will give the clinical case and gene involved in retinoblastoma. So it's very important topic. Like this also more radio resistant tumor, sensitive tumor आपको याद रखना है. 3-4 examples. Organ कौन सा होता है sensitive, कौन सा होता है resistant, ये आपको mind में रखना है. So this is the real booster. This is the real PDF of booster series, genuine PDF. Whoever is discussing anywhere, just don't trust. We made this. Each line is important because each question is of my own hard work. Uh, so it will be very helpful for everyone. आप जहाँ भी इस PDF को देख रहे हो, it is say between your friends also. It's a real PDF of booster series. And if anybody will want proof, I will send the proof also. Like we discussed in booster series one-liner discussion group. Those students who are not in Busa series now, I mean, they hadn't joined by some reason or they are not knowing from earlier. I'm saying that if you will find anywhere this type of PDF, just believe that this is our Busa series PDF, because we have some proof also, like if somebody will ask. Because this question we discussed already on Busa series discussion group. Those students who are premium member of Busa series, they already went through it nicely. We discussed live also. So okay, no problem. Next. Strain of yellow fever 17D. You have to remember this. ये आपको याद रखना 17D at least. Yellow fever, like last before 2 to 3 exam in NEET PG, they asked about yellow fever. और बड़ा clinical case था और they asked the strain. So you have to remember 17D. At least अगर कुछ बड़ा case है, if they are not like they are giving you confused for this, you have to just remember 17D. वो ऑप्शन में मोस्टली चांस होगा कि वो NEET PG का क्वेश्चन उन्होंने रिपीट किया है. So 17D आपको रिमेंबर रखना है. In Bryan Squats syndrome, taste and sensation is lost on ipsilateral side. और सब में तो वो like इसके mostly contralateral, but आपको ipsilateral taste and sensation loss को याद रखना है, क्योंकि वो जब ये Brown Square syndrome पे क्वेश्चन आता है तो every time they are confusing you on taste and sensation. Like they will give you ipsilateral, contralateral, both. So like taste and sensation is lost on ipsilateral side. Like you can remember, like sit. It's like S ipsilateral test sit. बिकॉज ब्राउन स्क्वायर सिंड्रोम में चलने नहीं देगा तो इंसान बैठा रहता है. तो लाइक दिस यू कैन रिमेंबर. विंगिंग ऑफ स्कैपुला इज सीन नर्व अफेक्टेड इज, दे कैन से हो यू द इमेजेस, लाइक पीछे का ऐसे वो विंगिंग टाइप का ऐसा बड़ा एग्जाम निकला है. एवरीबody knows it's previous year question, previous year topic also. Which nerve is affected? Long thoracic nerve. Which muscle is infected, affected? You can go through your notes.
जल्दी जल्दी करेंगे आगे. Montegia fracture, bone fracture is ulnar fracture. Double bubble sign is duodenal atresia. Single bubble is congenital hypertrophic pyloric stenosis. Very important. Duodenal, jejunal atresia. ये आपको दो को इसका रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग, रेडियोलॉजिकल इमेजेस आपको अच्छे से देख के आना है. एवरी टाइम दे आर आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम हियर. हियर आल्सो congenital hypertrophic pyloric stenosis. ओवल से abdomen is seen and all. चाइल्ड हिस्ट्री देंगे और आपको पूछते हैं. So metabolic changes also they are asking. In July also they asked about metabolic changes in congenital hypertrophic pyloric stenosis. Very important topic. Drug of choice for post-menopausal osteoporosis is bisphosphonates. तो कुछ फीमेल का हिस्ट्री दे देंगे. They will give history of female and all. Multiple bone fractures, बार बार फ्रैक्चर हो रहा है. So biphosphonate आपको याद रखना. Bone within bone appearance is osteoporosis. Osteoporosis में बोन का फ्रैक्चर होने का चांस काफ़ी इजीली होता है. तो बोन टूटता है, एक से दूसरे पे जा सकता है, दूसरे पे तीसरे पे आ सकता है, राइट. काफ़ी जल्दी फ्रैक्चर होता है. बोन इन बोन appearance they will show the clinical case like a 45-year-old female or 50-year-old female with this multiple time bone fractures as a history होगा. And they will give a hint like bone within bone appearance seen and defy the diagnosis osteoporosis. Mechanism of action of latinoprost, it's very important. PGF2 alpha. ये आपको याद रखना है. वेरी इंपॉर्टेंट. मे बी दे कैन आस्क दिस टाइम. कुछ बड़ा केस दे देंगे ग्लूकोमा का, दे विल आस्क द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लेटिनोप्रोस्ट. फियर ऑफ हाइट इज एक्रोफोबिया. ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ग्लूकोमा इज लेटिनोप्रोस्ट. सो आपको ये ध्यान में रखना है. एंटीडोट ऑफ दत्तुरा पॉइजनिंग एवरीबॉडी नोज. दत्तुरा पॉइजनिंग का केस बड़ा दे देंगे, उसके लिए कंफ्यूजन में नहीं आना है. एंटीडोट पूछते हैं, दे विल try to confuse you, but you have to remember this term. Wasting mean. Sharp object discarded in which color bag? White. I think it's FMG January 2024 question. Tolerance dose of lithium is, I think यहाँ पे 4 to 8. It's like 1.2 to 1.5 approx. ये माइंड में रखना. ये वो 4 to 8. I think it's either here. Iron overdose antidote. Every time they are asking, you have to remember. This time also दे देंगे कुछ iron का tablets उन्होंने ज़्यादा खा लिया है. They ate and they will ask the antidote. Most common cause of infective endocarditis. We already discussed in topic section. WhatsApp channel also in details, like different cause of infective endocarditis. So, stay for you. Wait a minute.
Here I think for diaphragm for umbilicus is T10, for diaphragm is 4. Inguinal hernia, treatment of choice. Generally for this they are giving the case of child, और एज एडल्ट का कुछ ऐसा हिस्ट्री होगा कि उसको एक बल्जिंग मास इज सीन ऑन ग्रोइन एरियाज, ऐसा कुछ करके, और इंगुइनल हर्निया इज सस्पेक्टेड. Treatment of choice, or maybe they will ask like surgical treatment of choice. Herniatomy. Most common organ injured in air blast injury, it's lungs. Stomach patient, salbutamol है, बहुत सारे ड्रग हैं, इसको अच्छे से देखना है. स्टमक के जो ड्रग है, you have to remember very nice, it's very very important. Stomach topic is really important, like you have to know about the drugs generally. ये एयर ब्लास्ट इंजरी में कौन कौन सा ऑर्गन इफेक्टेड होगा, या उसमें आपको लाइक फायर ब्लास्ट में मोस्ट कॉमन कौन सा, लिस्ट कौन सा, ये आपको याद रखना है एटलीस्ट एयर ब्लास्ट इंजरी टॉपिक के बारे में. फायर ब्लास्ट इंजरीज एंड ऑल वेरी इंपॉर्टेंट. दिस टाइम दे विल आस्क वन क्वेश्चन फ्रॉम हियर फॉर श्योर. ये हर बार ये भी क्वेश्चन इस पर आएगा. फ्यूल माल न्यूट्रिशन क्राइटेरिया, ये आपको याद रखना है लिस्ट. वेट फॉर हाइट, वेट फॉर एज, हाइट फॉर एज, दिस यू हैव टू रिमेंबर. इसमें कौन कौन सा रहता है, कितना स्टैंडर्ड डेविएशन पे. पोस्ट ऑपरेटिव फ्लूइड ऑफ चॉइस इज रिंगर लैक्टेट. कुछ ऐसा दे देंगे कि लाइक उसका ऑपरेशन हुआ है, इट्स ऑपरेटेड ऑलरेडी एंड इज लाइक इन रिकवरी फेज. व्हाट इज द फ्लूइड ऑफ चॉइस इन दिस कंडीशन, सो रिंगर लैक्टेट आपको याद रखना है. ये डेवलपमेंट एसडीजी गोल्स, एटलीस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस टर्म लाइक values. By MMR target to be achieved by 2030 is like less than 70 by life per birth. Very very important this question. Levonorgestrel dose is 1.5 mg within 72 hours. Maybe they can confuse you like 0.75 दे के वो पूछेंगे 2 doses, तो इसमें confuse नहीं होना है. Nerve damage in his pulse is C5 to C6. You have to remember very nicely. इसके आपको क्या क्या प्रॉब्लम होता है, तो हैंड इज इन एडक्शन पोजीशन पर रहता है. स्प्रिंट ट्रीटमेंट. स्टेप्स ऑफ डिजास्टर साइकिल, दे विल गिव द क्वेश्चन लाइक डिजास्टर साइकिल का कुछ ऐसा लिखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द करेक्ट स्टेप्स ऑफ डिजास्टर साइकिल. दे विल फॉर गिव 4 ऑप्शन. कभी इसको इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, ऐसे टाइप. बट रिमेंबर दिस स्टेप, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ये सारे अभी तक हमने जितना 62 क्वेश्चन डिस्कस किया है, आपको भी लगा होगा यू ऑलरेडी एनालाइज दैट ईच क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Each question is related to PYQ or else PYT. So you have to remember. One-liners try to integrate with clinical question. Common disease to occur in disaster is gastrointestinal associated disease. कौन सा? जनरली cholera. ये होता है, तो ये दिमाग में रखना है. Very important. First step in management of congenital hypertrophic pyloric stenosis is electrolyte correction, or if not, surgery is the next step. Demonstrate operation. Surgery of choice for eclampsia cardia is Ehlers myotomy. You have to remember this, very 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 important. Treatment of duodenal atresia, hemorrhage duodenostomy, at least X-ray image आपको ध्यान रखना है, double bubble sign. Surgery of choice of malrotation of gut is LATS operation. ये drug clinical case they will give you तो like big clinical case देंगे, और फिर उसके बाद पूछेंगे CLT2 inhibitor कौन सा है, आपको याद रखना है ग्लिफोजिन का, ग्लिफोजिन या ग्लिफोजिन. ओल्ड पेशेंट है, क्रोनिक डिजीज का हिस्ट्री है, हाइपरटेंशन है, ड्रग कौन सा है, मोस्ट कॉमन एस इनहिबिटर लिसिनोप्रिल. ऐसा ऐसा क्वेश्चन एवरी टाइम इन अल्टरनेट एग्जाम दे आर आस्किंग इन पीजी और आयन सेट और एफएमजी आल्सो, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. रिमेंबर दिस. Intravenous anesthetic of choice for neurosurgery is thiopentane. Very 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 important again, आपको ये याद रखना है. thiopentane को most cardiostable IV induction of choice is intermediate. Diagnosis of this pleural effusion, ये आप एक्सरे से दिमाग में रखो. Pleural effusion पे it's light criteria which is very important. I think booster series students they already remember about this. Light criteria आपको याद रखना है. Transudative, exudative.
Very, very important rights criteria for pleural effusion. Drug of choice for chemotherapy-induced vomiting is ondansetron. Maybe they will give his question like ondansetron is given in drug like chemotherapy-induced vomiting. What is the mechanism of action of ondansetron? 5. C3 receptor antagonist. Investigation of choice for pleural effusion is X-ray. Colon cut-off sign is seen as acute pancreatitis. Very important topic again. आपको ये माइंड में रखना है एक्यूट पेनक्रियाटिस टॉपिक को, इसके मार्कर को लाइक लाइपेज तो आपको दिमाग में रखना है। अगर एक्यूट पेनक्रियाटिस का कोई भी केस होता है, पेन बैक रीजन की तरफ जा रहा है, कुछ ऐसा दिखता है, पेन गोज इन द बैक साइड रीजन इन ग्रोइन रीजन, तो ये आपको पूछेगा उसका मार्कर या इंजाइम कुछ करके ऐसे कंफ्यूज करके पूछता है। इंजाइम एटलीस्ट आपको लाइपेज माइंड में रखना है। फैक्टर फॉर एपिडेमिक टाइफस इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस ऑफ एडिनोमायोसिस एमआरआई. Every time they are asking question from endometriosis investigation of choice, but this time maybe they will ask about adenomyosis का investigation of choice. It's MRI. Very 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 important again. PCOS का केस है, irregular menstruation है, drug of choice is OCP, oral contraceptive pills. There are so many drugs also, but PCOS का केस के साथ irregular menstruation भी है, oral contraceptive pill. Most common cause of infertility is inevolution. पीसीओएस में कौन सा लेवल एलएचएफएस कराता है, तो एफएसएच डाउन, एलएच बढ़ा रहता है, तो आपको ये याद रखना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये दोनों फॉर्मूला आपको एकदम टन पे याद रखना चाहिए। हाउ दे कैन आस्क व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस पीडीएफ इन दिस वे, बिकॉज यू नो वन लाइनर्स एवरीबडी नोज। आई मीन कोई भी अगर वन लाइनर ये पढ़ेगा तो पढ़ तो लेगा, याद तो चीजें हो जाएंगी, बट क्वेश्चन इस टॉपिक पे और कौन कौन सा टाइप से आ सकता है किस वे से, और लाइक हाउ दे कैन frame question on the basis of this. That's why I want to discuss in this way. MMR, they will ask in maternal mortality rate, in formula of maternal mortality rate, denominator is, numerator is. So like you have to remember the term also, numerator or denominator का. So it's very, very, very important. Drug of choice for hydrated cyst, FMG, January 2024 question. Albendazole आपको याद रखना है, maybe they will show the radiographical image. They will ask like इसका ड्रग बताओ कौन सा यूज करते हैं, ये याद रखना है। ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ स्टिस्टोमेसिस इज प्राज़िमेंटल, ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। टम्बलिंग मोटिलिटी, जितना भी टाइप का मोटिलिटी है, एटलीस्ट ये टम्बलिंग मोटिलिटी, कॉर्क्स्क्रू मोटिलिटी, टू रिमेंबर लिस्टेरिया में टम्बलिंग, कॉर्क्स्क्रू मोटिलिटी में स्पाइरोकेट्स, जितने भी टाइप्स के अदर मोटिलिटी आपको याद रखना है। गारंटी वन क्वेश्चन इस बार यहाँ से आएगा। सो व्हाट यू एनालाइज टिल नाउ इज, आपको क्या लगता है इन ईच क्वेश्चन यू कैन फाइंड कि ये सारे टॉपिक तो इंपॉर्टेंट है ही, ये तो हमको मस्ट डू करना है। एंड फॉर दिस टॉपिक्स द क्वेश्चंस आल्सो दे कैन आस्क, हाउ दे कैन आस्क क्वेश्चन ऑन दिस, आपको ये पता चल रहा होगा आई थिंक। ये ध्यान में रखना है। देखो मैंने काला जार का डिस्कस किया था वहां पे, वेक्टर, इसका ड्रग कौन सा है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो आपको ऐसा दिखेगा मेनी टाइम्स कि कौन जो जो टॉपिक्स है हम लोग डिस्कस किए हुए हैं, यहाँ देखो जैसे प्लूरिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो यहाँ पे इसका एक्सरे आप ध्यान में रखो, हो सकता है कि कंफ्यूज करने पूछ देंगे, आइडेंटिफाई द एक्सरे इमेज, इस टाइप का क्वेश्चन, या फिर उसके इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस पूछ सकते हैं प्योर फ्यूजन में। तो ये माइंड में रखना है। हम लोग लाइट क्राइटेरिया भी आगे में वन लाइनर करवाए हुए हैं, वी विल डिस्कस लेटर। अकॉर्डिंग टू एनीमिया मुक्त भारत, एवरी टाइम दे आर आस्किंग क्वेश्चन, अगेन दे कैन आस्क क्वेश्चन हियर। एफएमजी जनवरी में भी ये क्वेश्चन आया था, दे कैन आस्क अगेन। डोज ऑफ फॉलिक एसिड इन प्रेगनेंसी, ये आपको ध्यान में रखना है। डोजेज एटलीस्ट जितने भी फेजेस हैं, एडल्ट में, चाइल्ड में, एडोलेसेंस में, ये आपको ध्यान में रखना है। अगेन हियर आर्मेनिया मुक्त भारत में एडोलेसेंस एज में कौन कितने ग्राम, 60 mg आयरन, 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड, blue tablet. Here it's red pill, red tablet. In the card test, which muscle is checked for? Alveolar introsi. So in card test also they can ask the nerve involvement. तो ऐसा दे देंगे कि लाइक अल्नर नर्व का डैमेज है, कार्ड टेस्ट हो रहा है, which muscle is check, we can check which muscle, or like they can ask which muscle is checked for card test. So malware introsi. Drug of choice for open angle, again etinoprost. Teratogenic effect of phenytoin, fatal hydrotic syndrome, ये काफी इंपॉर्टेंट है।
इसका साइड इफेक्ट वी ऑलरेडी डिस्कस इन टॉपिक सेक्शन ऑफ बूस्टर सीरीज एज वेल। फिकोमिलिया साइड इफेक्ट ऑफ विजिट ऑफ थैलेडोमाइड। वो चाइल्ड का ऐसा कुछ इमेज दिखा देंगे, चाइल्ड का फिकोमिलिया है, शॉर्ट फिंगर, शॉर्ट legs and all. We'll ask which drug causes this condition. So it's thalidomide. Igawa test, which nerve we check? It's ulnar nerve. Four tests used for ulnar nerve palsy is Igawa, hook fragment, hook test, fragment test, card test, paper test. ये आपको ध्यान में रखना है कुछ कुछ टेस्ट. Malus is developed from which pharyngeal arch first? Incus is. Can anybody write? Incus is developed from which pharyngeal arch? I'm waiting for the answer. Incus is developed from which pharyngeal arch? First. ओके, अभी तक आपको पता चल रहा है कि कैसे वन लाइनर को इंटीग्रेट कर सकते हैं, किस वे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं. डिड यू फाइंड टिल नाउ कि कैसे वन लाइनर को अच्छे से यूज कर सकते हैं? एनीबॉडी कैन राइट हियर इन कमेंट बॉक्स. आई थिंक आपको अभी तक पता चला होगा कि टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है और किस टॉपिक से किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. हाउ दे कैन आस्क क्वेश्चन ऑन दिस. ऑल्दो इट्स वेरी लेट, you also, you all are tired, I am also tired, but still this is all the first session. From tomorrow or day after tomorrow, like we will be active in afternoon's time or in evening time. तो अभी टायर्डनेस थोड़ा ज़्यादा है, but still I am trying to cover most of these things. So till now we discussed like 96 तक, फिर 97 में laryngomalacia which stridor is seen. It's a very important topic, most common congenital stridor in children. इंस्पिरेटरी दिखता है. इन जनवरी दे आस लाइक लेंजोमेसिया का उन्होंने वो इमेज दिखा दिया था. दे आस्क अबाउट द स्टेटमेंट इज लाइक ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट लेंजोमेसिया एक्सेप्ट बाय शोइंग द इमेज. तो फोर ऑप्शन था, उसमें था कि एक्सपायरेटरी इंस्पिरेटर इज सीन. इंस्पिरेटरी ध्यान में रखना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अनदर टर्म ऑल्सो लाइक मोस्ट कॉमन कॉन्जेनाइटल प्रॉब्लम है चिल्ड्रन में. वोकल नोड्यूल है, अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, वॉइस रेस्ट. वो टीचर का हिस्ट्री देंगे और दे विल आस्क लाइक दिस. Best medium for diagnosis of Staph aureus is menthol salt. अगर रिसोर्स लाइक इन्फेक्शन हो कि ये इन्फेक्शन हुआ है, उसको स्टेफ ऑरियस का डाउट लग रहा है, कौन सा मीडिया जो है मोस्ट कॉमन है, बेस्ट मीडियम पूछ सकते हैं तो मेंथोल सॉल्ट. अगर सो स्टेफ ऑरियस टॉपिक इज टू इम्पोर्टेंट, यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस लिस्ट स्टेफ ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस, लिस्टेरिया, स्यूडोमोनास. ये सब काफ़ी हाई हिल्ट. क्लोस्ट्रीडियम प्रेफरेंस, टेटनस, ब्रुसेला, लेप्टोस्पाइरा, ये सब फाइल टॉपिक्स. एटलीस्ट माइक्रो कुछ नहीं पढ़ना है, एटलीस्ट यू कैन डू these topics. Crude birth rate of India is 0.6, very 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 important. जनरल फर्टिलिटी रेट आपको ध्यान में रखना है, फॉर्मूला को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दे विल आस्क. इस पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है. हर बार जनरल फर्टिलिटी से, टोटल फर्टिलिटी से, नेट रिप्रोडक्टिव रेट से आता है क्वेश्चन. हम लोग नीचे वी ऑलरेडी डिस्कस्ड मेनी one-liners on the basis of TFR and GFR and like other mortality indicators. Also हम लोग डिस्कस किए हुए नीचे में. नॉर्मल PCO2 वाई वी डिस्कस्ड बिकॉज जब वो क्वेश्चन आते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस और कोलोसिस से, तो एटलीस्ट स्टूडेंट को याद नहीं होता है. तो हम लोगों ने वन लाइनर में डिस्कस करवाया था कि एटलीस्ट 35 to 45 आपको CO2 का लेवल याद रखना है. निपा वायरस केस केरला में, वेक्टर कॉजिंग ट्रांसमिशन इज बाइट्स एंड पीक्स. वेरी 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 इंपॉर्टेंट दिस टाइम, हाई चांस टू कम इन द पेपर. निपा वायरस का कुछ ऐसा हिस्ट्री देंगे, केरला देंगे, आपको पकड़ लेना है. लाइक they will give a hint like Kerala, you have to just catch the term Kerala, that's Nipah virus, and most of the time. तो निपा वायरस से वो वाइट्स एंड बीक्स ट्रांसमिशन कराता है वो वेक्टर.
Most common serious manifestation in Down syndrome is endocardial fusion defect. Very, very, very important. See, Anka is seen is Wenger syndromitis is yes. Identify the image. ये आपको ध्यान रखना है 3 है 1 2 3 3 वे फॉलीज कैथेटर 2 भी आता है कार्डियक टेम्पोनेट चेंजेस सीन इन एक्स प्रोमिनेंट वाई डायमेंस्ड ये तो बी का फेवरेट है इस बार आएगा बिकॉज फ्रॉम लास्ट 1 और 2 एग्जाम दे आर नॉट आस्किंग लास्ट पिछले एग्जाम में शायद उन्होंने नहीं पूछा था दिस टाइम दे विल आस्क फॉर श्योर कोस्मोल साइन इज सीन इन कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस ये याद रखना है कोस्मोल साइन दे आस्क इन जनवरी इन जुलाई स्पर्म मॉर्फोलॉजी वैल्यू 4% इसका जितना भी स्पर्म मॉर्फोलॉजी हुआ या फिर इसके नंबर्स हुए किस क्राइटेरिया आपको अच्छे से याद रखना है ये तो सी एन का पी एन का ये याद रखना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इट्स वेगनर्स ग्रेनुलोमेटोसिस आपको ये एटलीस्ट टर्म याद रखना है पीएन का में भी आपने देखा होगा कि हमने डिस्कस करवाया हुआ है बूस्टर सीरीज में डिटेल्स में आपको करना है बूस्टर सीरीज टॉपिक्स एंड एमसीक्यू इज रियल डिसाइडर ऑफ एग्जाम अगर आप कुछ नहीं पढ़े हो टिल नाउ इफ यू हैवंट कंप्लीटेड एनीथिंग ट्रस्ट मी इन 30 days एटलीस्ट तुक्का से 90 100 सबको स्कोर कर लेता है बट 30 days आपको एटलीस्ट 10 to 12 hours अगर आप एटलीस्ट बूस्टर सीरीज में दे देते हैं यू विल पास विद दिस वन लाइनर्स हाउ टू अप्रोच दिस वन लाइनर तो पूरे मार्केट में फैला हुआ है नो डाउट बट कैसे अप्रोच करना है कैसे चीजें जैसे मैंने अभी बताया आपको यहाँ ये सारा चीज किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और भी इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है मोस्टली वी डिस्कस लाइक अभी तक हमने 100+ क्वेश्चन किया मोस्टली वी डिस्कस की मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में और कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है जैसे डाउन सिंड्रोम में आपको इसका मार्कर जरूर याद रखना है मार्कर्स इसके याद होने चाहिए इसके फीचर्स याद होने चाहिए इमेज दिखा के वो परमानेंट क्रीच और वो दिखा के पूछ सकते हैं क्वेश्चन ऑन डाउन सिंड्रोम सो you have to be very careful here down syndrome it's very important सबसे ज्यादा इसका वो सीवियस मैनिफेस्टेशन इंपॉर्टेंट है फिर इसके फीचर्स फिर इसके मार्कर्स आपको ध्यान में रखना है इनिवीन कौन सा इंक्रीज है डिक्रीज है ऐसे करके बिटाजिज इंक्रीज है डिक्रीज है नॉर्मल है ऐसे करके वो आपको ध्यान में रखना है डायग्नोसिस ल्यूकोप्लेकिया ये वी ऑलरेडी कवर्ड इन टॉपिक सेक्शन ऑल्सो रेथोप्लेकिया एंड ल्यूकोप्लेकिया Ranula hai, most of the time they are asking question. This time they will ask question from Ranula. 100%, 500%. Ranula आपको अच्छे से देख लेना उसके statement. They will give the question like they will show the image and they will ask all of the following are the features of Ranula except या which one of the following is true about Ranula. तो एक क्वेश्चन एक ऑप्शन सही होगा या फिर 3 क्वेश्चन ऑप्शन सही होगा एक ऑप्शन गलत होगा तो ऐसे करके दे कैन कंफ्यूज ये लिपर्ड मनोवर आपको तो याद रखना ही है ये थर्ड ग्रिप फर्स्ट सेकंड भी आपको याद रखना है ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कर्व्ड इंट्रोट्रैकियल ट्यूब है नेक्स्ट इज यूज ऑफ ये नया अपडेट था वाइट 17 गॉज इज वाइट कौन कौन सा यूज करते हैं जनरली ट्रॉमा में मेजर सर्जरी में रेपिड फ्लूइड रिप्लेसमेंट में बिकॉज दे कैन आस्क कैनुला से क्वेश्चन नहीं आ रहा है पिछले 3 4 एग्जाम से एट दिस टाइम दे कैन आस्क वो फंक्शन पूछेंगे वो ऐसे कैनुला दिखा के नहीं पूछेंगे कौन सा गज है कितना कौन सा कलर होगा इसका दे विल आस्क द फीचर्स ऑल्सो लाइक इसके इस यूजेस भी पूछ सकते हैं 17 गॉस का या 18 का या 20 का 22 का 24 का तो उसके आपको फीचर्स याद रखने हैं दैट्स वाई आई एम डिस्कसिंग दिस वन लाइनर कि आपको ये वन लाइनर क्लिनिकल क्वेश्चन में या कोई भी अदर क्वेश्चन में इस टॉपिक से रिलेटेड कैसे हेल्प कर सकता है दैट्स वाई आई स्टार्टेड डिस्कसिंग इन दिस वे पेशेंट विथ एबडक्टर पाल्सी ट्रीटमेंट इज साइटोप्लास्टिक टाइप 2 जितने भी टाइप 1 है टाइप 2 है टाइप 3 टाइप 4 इस बार यहाँ से चांस है ये इंपॉर्टेंट है ईच क्वेश्चन ऑफ दिस वन लाइनर is important if you will find like 80 to 90%. You have to apply nicely. Like अगर आप थायरोप्लास्टी टाइप 2 पढ़ लिए तो आपको ये ध्यान रखना है टाइप 2 यहाँ डिस्कस हुआ है वी ऑलरेडी डिस्कस लाइक यू हैव टू रिमेम्बर फॉर टाइप 1 ऑल्सो टाइप 3 ऑल्सो टाइप 4 ऑल्सो इन दिस वे डायबिटिक पेशेंट है विथ हाइपरटेंशन ड्रग ऑफ चॉइस बड़ा सा केस दे देंगे डायबिटिक पेशेंट 66 year old the history of hypertension from last 10 years he is taking drug he is taking hypertensive drug कुछ ऐसा ड्रग का नाम दे दिए और फिर पूछेंगे कि कौन सा ड्रग अभी के सिचुएशन में देंगे इससे सिचुएशन और इम्प्रूव हो एंजियो टेंशन रिसेप्टर ब्लॉकर्स और ऐसे जनरली ये आपको याद रखना है माइंड में
रोनाल्डो फ्रैक्चर है, क्या देखने को मिलता है? लाइक फ्रैक्चर बोन हो जाता है फर्स्ट मेटाकार्पल जॉइंट के पास विद फ्रेगमेंट, पार्ट्स में टूट जाते हैं फर्स्ट मेटाकार्पल बोन के पास। नेम वन ड्रग ऑफ डायरेक्ट रनिन इनहिबिटर। करंट ड्रग सेलिसिकेरेन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एनसेट पीजी में भी पूछा हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर? तो ऐसे Mendelian inheritance of retinoblastoma, as we discussed earlier also about retinoblastoma, here you need autosomal dominant. Why this PDF is important? Because you will find like कुछ कुछ टॉपिक से उस पर क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, वी डिस्कस इन डिटेल्स ऑल्सो, और जो डिटेल में डिस्कस नहीं हुआ है वी कवर्ड इन ग्रुप, आई मीन इन टॉपिक सेक्शन ऑफ बूस्टर सीरीज ऑल्सो। सो मैं बोल रहा हूँ ना अभी से, इफ एनी स्टूडेंट विल स्टिक हियर on this one liners PDF with those all topics cover in booster series with all MCQs done till now, अगर आप 8 से 10 घंटा डेली दे दो आज से तो इनफ है पास होने के लिए। दिस क्वेश्चन एवरी टाइम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल टाइम इंपॉर्टेंट। दे विल शो द पैथोलॉजिकल इमेज ऑफ डबल बॉडीज, they will ask which type of tumor is this, York sac tumor, एक सेल calcification is seen in psychosis, बॉडी पिंक है, पल्स मोर देन 100 है, चाइल्ड इज लेथर्जिक, आपका स्कोर। आप अगर इस बार यहाँ से क्वेश्चन आएगा, अभी तक हम लोगों ने 167 क्वेश्चन डिस्कस किया, आप लोगों को लगा होगा यू ऑलरेडी फाउंड दैट ईच क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट, और इसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं मैंने मोस्टली बताया। ये मैं यूट्यूब पे भी डालूंगा, अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो आप 2x पे करना है, फटाफट 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 देखते जाना है। एग्जाम के लास्ट के जब 2-3 दिन बचेगा तक इसको यूट्यूब से खोल के देख लेना, तो उससे आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा कि अच्छा ये टॉपिक से ये क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। एवरीथिंग वी कवर्ड इन दिस वन लाइनर। और टॉपिक सेक्शन आप तो आपको तो छोड़ना ही नहीं, लास्ट लास्ट तक एकदम एग्जाम के डे मॉर्निंग तक आपको टॉपिक सेक्शन रिवीजन में रखना है। और ये वन लाइनर के यूट्यूब पे मैं पोस्ट करूंगा इसको भी, और पीडीएफ तो देखते रहना। ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ इक्विनोकोकस इन्फेक्शन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, albendazole and albendazole, generally they are giving albendazole in option। here is basophilic stippling is seen, सिकल सेल एनीमिया में होता है, पूछ सकते हैं बेसोफिलिक स्टिपलिंग इज सीन, डिफाइड डायग्नोसिस, कुछ बड़ा सा ऐसा क्लिनिकल केस देके। साइनस टेकिकार्डिया का केस है, रिप्लेस मैन्यूवर, कैन एनीबडी विल राइट लाइक रिप्लेस मैन्यूवर कहाँ हम लोग यूज करते हैं, वेयर वी कैन यूज रिप्लेस मैन्यूवर, एनीबडी? काफी इंपॉर्टेंट सेशन हो रहा है ये, और बीपी पीवी, ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कैन एनीबडी विल राइट लाइक ये कौन सा है, लाइक ट्रीटमेंट के लिए या फिर डायग्नोस्टिक, डायग्नोस्टिक टेस्ट और इट्स ट्रीटमेंट, रिप्लेस मैन्यूवर? पीपीपी में यूज करते हैं बट इट्स डायग्नोस्टिक टेस्ट और ट्रीटमेंट के लिए रेज मैन्यूवर। ट्रीटमेंट डायग्नोसिस आई एम वेटिंग। यस, वेरी गुड, इट्स फॉर ट्रीटमेंट, बट डायग्नोसिस के लिए कौन सा मैन्यूवर यूज करेंगे? डिक्स हॉल पाइक में, वेरी गुड। आपको ऐसे याद रखना है लाइक डी फॉर डायग्नोसिस, डी फॉर डिक्स हॉल पाइप, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है, इट्स वेरी कंफ्यूजिंग पार्ट, लाइक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। अगर एग्जाम में आप कंफ्यूज हो तो यही कंफ्यूजन वहां भी बनी होगी, वाई आई एम आस्किंग इन दिस चैट सेक्शन, बिकॉज आपको वहां भी कंफ्यूजन होगा। तो आप ऐसे याद रखो लाइक हर कुछ ऐसा वर्टिगो वगैरह केस देते हैं और लिखते भी हैं, आजकल तो कोई कोई क्वेश्चन लिखते भी हैं कि लाइक दे आर आस्किंग लाइक डायग्नोसिस ऑफ वेनिंग इन पैराविजिबल पोजिशनल वर्टिगो इज सीन, तो उसको बोलेंगे कि identify the test perform in this condition or identify the treatment for this condition। so D for diagnosis, D for Dix Hall Pike maneuver, ऐसे याद रखो आप, इससे याद रहेगा।
हाँ, क्योंकि अगर आप एक याद कर रहे हो तो ट्रीटमेंट अगर पूछता है तो आपको याद रखना है कुछ ऐसा डी से रिलेटेड नहीं है। डायग्नोसिस में ही पूछा है तो डी से तो होगा ही नहीं, डिक्सोल पाइप होगा ही नहीं। ट्रीटमेंट पूछा है तो एप्लेस ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। आई होप इट्स क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। यस। Child standing with support at which is milestone. We already posted a YouTube, I mean, video on YouTube about the milestone. Very important video. Go through that. All important milestones we covered, and like in topic section also in written form, I posted there all important milestones. 1 to 2 question guarantee again in FME January. So अभी तक आप देखो कम से कम लगता है कि लाइक 20 से 30 क्वेश्चन आराम से हमने बता दिए जो इंपॉर्टेंट है, और आएंगे ही आएंगे, आपको हेल्पफुल होगा। ये सारे इंपॉर्टेंट ही डिस्कस्ड हैं वन लाइनर्स। वन लाइनर तो पीडीएफ मार्केट में है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, वन लाइनर तो कोई भी ऐसे पढ़ लेगा वन बाई वन, बट ऐसे अप्रोच करना है कि क्वेश्चन को किस टाइप से क्वेश्चन और इस टॉपिक पे पूछा जा सकता है वन लाइनर्स के अलावा। जैसे रेटिनोब्लास्टोमा में बोला कि किस टाइप से आ सकता है, हाइपरटेंशन में कैसे फ्रेम कर सकते हैं, थायरोप्लास्टी पे और किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, कैनुला पे किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, वाइट पे रेड पे किस टाइप से पूछेंगे। बिकॉज अगर कोई भी नहीं लाइक ऐसे फॉलो करेगा तो बस ये इतना याद रखेगा 17 गज में, अच्छा ये अगर पूछ दिया 18 गज या 20 गज 22 गज, उनको पता ही नहीं होगा, वो याद करके उस टाइप से गए ही नहीं होंगे। इन वन लाइनर आई एम डिस्कसिंग इन डिटेल्स की किस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। टॉपिक तो डिस्कस नहीं कर सकते, बट इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम, लॉट्स ऑफ टाइम, लॉट्स ऑफ टाइम। जल्दी जल्दी कवर करना है, टाइम लेस है, तो इसलिए एटलीस्ट मैं इतना जरूर बता रहा हूँ इन ईच क्वेश्चन दैट हाउ अदर क्वेश्चन कैन बी फ्रेम ऑन दिस टॉपिक, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 170 में ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सिजोफ्रेनिया एवरीवन नोज इज हेलोपेरिडोल। सिजोफ्रेनिया का भी केस ऐसा दे सकते हैं कि उसको इल्यूजन डिल्यूजन हो रहा है, हेलुसिनेशन का केस है, वो डेली एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है, कुछ ऐसा सिजोफ्रेनिया ही सस्पेक्टेड। और अगर सिजोफ्रेनिया नहीं भी बोलेगा, पूछेगा कि व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्रग यूज हियर। तो ऐसे याद रखना, जीन इन्वॉल्व इन Menkes disease is ATP7A. Can anybody write like in Wilson disease, which gene is involved? विल्सन डिजीज में कौन सा, आई मीन एटीपी कौन सा इन्वॉल्व होता है? 7 है तो यहाँ मेंकेज में, बट फॉर विल्सन डिजीज। यस, ATP7B। दिस टाइम आई बिलीव विल्सन से या मेंकेज से एक क्वेश्चन यहाँ भी कंफर्म है। और आप इतना याद रख लो, इफ आई एम सेइंग दिस, माय रेशियो ऑफ दिस प्रेडिक्शन इज 80%। बिलीव मी और नॉट, although yes I am not a teacher, I am just FMG pass student, first attempt I pass, but still I have broad idea for this topic prediction. Last time those students who joined, they many students passed with this prediction. लास्ट में तो उन्होंने बस इतने ही टॉपिक को किया, इसी वजह से किया, दे पास। somehow few students stuck because 148 149 वाला सीन, तो जिन्होंने अच्छे से फोकस किया है वो पास होगा, ये मेरा गारंटी है। सो 7B, ओके। तो आपको एटलीस्ट इतना तो कर लेना है लास्ट में, एटलीस्ट वन लाइनर ये वीडियो पड़ा रहेगा, वीडियो आपको 2x पर करके एग्जाम के 2 दिन 3 दिन पहले फटाफट इसी को देखना है। यू विल फाइंड मेनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस पीडीएफ इन एग्जाम। नॉन सिलेक्टिंग ग्रेनुलोमा इज सीन इन sarcoidosis. Can anybody write like selective granuloma is seen in anybody in comment box? I am waiting there. We already discussed in topic section booster series डिटेल्स में हम लोगों ने सेडेटिव और वो 1 मिनट प्लीज। एनीबडी राइट अबाउट दिस? और सेटिंग तो बोल दिया, सेटिंग में कौन सा होगा? एग्जाम्पल, एनी 1 or 2 एग्जाम्पल? यस, वेरी 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 गुड। सृजस, टीबी, टीबी, very very important, this topic is very important, they will show maybe the pathological image also। कुछ टीबी का ऐसा केस दे देंगे और sarcoidosis का केस दे देंगे, बट दे विल शो द पैथोलॉजिकल इमेज एंड लास्ट which type of granuloma is seen in this condition। हो सकता है sarcoidosis, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक,
इस टाइम साइकोडोसिस से क्वेश्चन आएगा, बाइहिलरली फेडेनोपैथी इज प्रेजेंट, और ऐसा ऐसा करके पूछेंगे। और फिर उसके बाद से वो पूछ सकते हैं ग्रेनुलोमा के पैथो और मेडिसिन को इंटीग्रेट करके। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। टीबी के अलावा एनी मोर एग्जांपल? टीबी के अलावा में we discuss in details, I mean we covered each pathological image in topic section booster series। डिटेल्स में हम लोगों ने किया है कुछ मंथ पहले। And, मेरे को लगता है कि आपको ये चीज माइंड में होनी चाहिए। अदर एग्जांपल ऑफ इन दिस वेरिएंट टीबी के अलावा इस कैटेगरी में, मोर एग्जांपल? आपको बताना ही होगा, जब तक आप बताओगे नहीं तब तक आगे डिस्कस होगी नहीं। बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। टीबी के अलावा भी पूछा जा सकता है कंफ्यूज करने के, बिकॉज दे आर ऑल्सो नोइंग दैट यू आर नोइंग अबाउट टीबी। एनीबडी? आपको कहीं से खोजना होगा, बट यू हैव टू से वन मोर एग्जांपल। आप गूगल देखो, जहाँ भी देखो, नो इट्स नॉन रेटिंग टाइप sarcoidosis। वेरी 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 गुड। हियर इज फंगल इन्फेक्शन, समीर टोल्ड करेक्ट आंसर। आपको इजी वे में लेना था चीज़ों को। ज़्यादा देखो, प्रॉब्लम क्या होती है कि एग्जाम में आपको चीज़ों को थोड़ा सिंपल लेके भी चलना है। कुछ ऐसा मैंने नहीं पूछा लाइक यू हैव टू टेक सिंपल। मैंने बस पूछा कि यहाँ पे मैंने डिस्कस किया उनके कैसिएटिंग ग्रेनुलोमा इज इन सार्कोइडोसिस। तो कैसिएटिंग ग्रेनुलोमा तो उसमें आपको टीबी के अलावा भी फंगल इन्फेक्शन के अलावा पूछ सकते हैं। कुछ ऐसा दे देंगे, कुछ फंगल केस है, तो आपको एक्स्ट्रा एक दो चीज कभी कभी याद रखना होता है। A child with pneumothorax, insertion of needle at which location takes place? I think it's here. Yeah, can anybody will clear in comment box like its proper location? A child with pneumothorax, कहाँ पे needle insertion करते हैं? Like I find here some error. If it is error or not, kindly confirm or I will write in comment box. Correct answer. Because this PDF is made by one of the student, active student of Booster series. So कभी कभी like student teachers सभी से mistakes हो जाती हैं। वो मिस्टेक्स किसी किसी क्वेश्चन में स्लाइट एक दो तीन क्वेश्चन में हुए हैं बीच बीच में। लाइक वी आर डूइंग इट करेक्ट बाय गोइंग थ्रू इट। सो एनीबडी राइट करेक्ट लोकेशन? ओके, यस। सेकंड इंटरकोस्टल से बस इतना आपको याद रखना है माइंड में। सेकंड दो छोटा होता है एज कम्पेयर टू फाइव। तो आप सेकंड याद रखो, वो क्लियर हो जाता है आगे। आपको सेकंड यहाँ याद रखना है बिकॉज टू इज स्मॉलर देन फाइव, और दो छोटा बच्चा है, तो ऐसे याद रखो। तो सेकंड टीबी और एचआईवी पेशेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टीबी का केस और एचआईवी का भी कुछ बता देंगे कि सीडी काउंट इतना है, एचआईवी पेशेंट इज हियर। कुछ बड़ा ऐसे क्लिनिकल केस दे देंगे और पूछेंगे कि अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन दोनों हो चुका है, क्या इन्वेस्टिगेशन अप्रोप्रिएट होगा? सीबी नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इट्स प्रीवियस ईयर टॉपिक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दिस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आप क्या बताऊँ, हर तुम मेरे को इम्पोर्टेंट ही दिख रहा है। लाइक मेरे को तो लगता है कि लाइक 150 के लिए वन लाइनर को ही अगर स्टूडेंट एक अपना बेसिस बनाकर अगर इससे रिलेटेड टॉपिक पढ़ते जाता है, लाइक सर्किडोसिस मैंने बताया तो इसके बारे में आपको मेडिसिन से कर लेना है। कैसा क्वेश्चन सर्किडोसिस मेडिसिन में आ सकता है? तो वो ऐसा बाइलर लिम्फेडेनोपैथी का केस देंगे, ऐसा कुछ हाइपरकैल्सेमिया का सिचुएशन होगा, ऐसे करके पूछेंगे और पूछेंगे कि बताओ डायग्नोसिस क्या है। हो सकता है कि वो पंडा साइन पूछेंगे उस पे, पेट स्कैन एंड ऑल पे, तो उस पे ये टॉपिक
पैथो और मेडिसिन बेसिस पे इंपॉर्टेंट है। लिंकेज और बायोकेमिस्ट्री का था मेरा टॉपिक है, पीडिया का था मेरा टॉपिक। तो इंटीग्रेटेड है, इस बार चांस है लिंकेज पूछा है इस बार आई सेट नवंबर में। सो हाई चांस कि इस बार आ सकता है। सब तो मेरे को इम्पोर्टेंट ही लग रहा है लाइक टिल नाउ, बिकॉज इट टुक माई लॉट्स ऑफ टाइम टू प्रिपेयर दिस। लाइक मैंने तो लाइक इसको प्रिपेयर एक दूसरा सीरीज के स्टूडेंट ने किया है, मैं एग्जाम के बाद बताऊंगा किसने किया है। लाइक it was so helpful for me and बट क्वेश्चन फ्रेम, आई मीन क्वेश्चन रेडी हमने किया है, आंसर स्टूडेंट्स ने दिया ग्रुप में। कभी कभी कंफ्यूजन इसलिए हुए हैं बीच बीच में क्योंकि स्टूडेंट कभी कभी एरर एक दो बीच में बता भी दिया है, लाइक हमने ध्यान नहीं दिया उस टाइम में। तो थोड़ी थोड़ी मिस्टेक तो टीचर्स या अच्छे अच्छे प्रोफेसर से भी एग्जामिनर से भी होती है, सो यू हैव टू इग्नोर दिस। तो इसलिए बाकी एवरी क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। नेम ऑफ रेसिस्टेंस वेसल्स आर्टरी आर्टरियोल्स, मोस्ट कॉमन ट्रांसलोकेशन इन मेंटल सेल लिम्फोमा TU1114। वो ऐसा कुछ कुछ बड़ा सा केस देंगे आपको, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लाइक यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग, बट दे विल हिंट लाइक T11.14 इज प्रेजेंट। तो आपको पूछेगा कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लिम्फोमा सीन हियर, तो मेंटल सेल लिम्फोमा। ये ट्रांसलोकेशन हम लोग डिटेल्स में ग्रुप में डाला हुआ है। टॉप वेब अपीयरेंस ऑफ CSF इन TB मेनिंजाइटिस, कुछ ऐसा बड़ा केस दे देंगे मेनिंजाइटिस से, और फिर आएगा केस और फिर उसमें ओके। Sorry for the disturbance. I mean, vital spot classify under which type of thalassemia? X1B आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट इंगुलर हर्निया लोकेशन मीडियल साइड, इसके बारे लोकेशन आपको लिखना होगा। कमेंट बॉक्स राइट द प्रॉपर लोकेशन ऑफ डायरेक्ट इंगुलर हर्निया। स्पाइडर लेग अपीयरेंस ऑन IBP is seen in पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, वेरी इंपॉर्टेंट। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज बड़ा सा केस देगा और उसमें दिखा रहेगा स्पाइडर लेग अपीयरेंस ऑन IBP, इंट्रावेनस पाइलोग्राम इज सीन, आइडेंटिफाई द डायग्नोसिस और व्हाट इज डायग्नोसिस हियर। तो ये ध्यान रखना। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस ऑफ जेंकस डायबिटिकुलम पेरेम सोलो, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आर्च ऑफ अरोटा, फोर्थ आर्च, ये इस बार आया था इमेज बेस दिखा के जुलाई में। पेशेंट ऑफ रिंकेज एडिमा, मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट इज माइक्रोलैरिंजियल सर्जरी, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस टाइम अगेन विल आस्क क्वेश्चन फ्रॉम हियर रिंकेज एडिमा से। हो सकता है सिम्टम बेसिस पे पूछ सकते हैं या फिर ट्रीटमेंट बेसिस पे। पेशेंट हैविंग हाइपोपिगमेंटेड लेजन, व्हाट टाइप ऑफ लिप्रोसी। हाइपोपिगमेंटेड टर्म अगर आपको दिखा है तो ये आपको दिमाग में रखना है, जो का ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर यही होता है। हाउथॉर्न बायस इज सीन इन विच एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी, कोहॉर्ट स्टडी। पूछ सकता है कि हाउथॉर्न बायस इन वन लाइनर टाइप में किस कौन सा स्टडी में देखते हैं, कोहॉर्ट में। व्हाट इज द कोलंबो प्लान, वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स आईएनसी PYQ, फॉर्मेशन ऑफ कोबाल्ट थेरेपी, इंटरगवर्नमेंटल एजेंट प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक ग्रोथ हेल्थ इंफॉर्मेशन ऑफ एम्स। ये कोलंबो प्लान और भी तीन चार प्लान, फोर्ड को भी और दो तीन और को हम लोगों ने टॉपिक सेक्शन में कवर किया है। और आई थिंक वन लाइनर जब डिस्कस हो रहा था 1 month बिफोर, आई ऑलरेडी पोस्टेड फ्रॉम PSN बुक। सो वहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोलंबो और फोर्ड एटलीस्ट। थ्री एग्जाम्पल्स ऑफ टाइप ए बायोटेररिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस टाइम टाइप ए और या टाइप सी से पूछ सकता है क्वेश्चन। और ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ टाइप ए बायोटेररिज्म एजेंट्स एक्सेप्ट, तो ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है। ऑटोसोमल रिसेसिव का केस है, वी ऑलरेडी कवर्ड इन डिटेल्स टॉपिक सेक्शन टुडे।
कौन कौन सा क्राइटेरिया होता है आपको देख लेना है जल्दी जल्दी। सो देखो, आप इतने देर में हम लोग 200 क्वेश्चन तक पहुंचने वाला है। टिल 200 विल कवर टुडे, नेक्स्ट अगेन इन नेक्स्ट सेशन। Patient with urethral discharge, drug given is erythromycin. Name the color of steady kit, very important this kit type of situations। urethral discharge है, erythromycin ड्रग देते हैं, कौन सा किट यूज होता है? तो ग्रीन पे भी जनरली, और रेड पे हर्पेटिक नॉन हर्पेटिक अल्सर, उसका कौन सा ड्रग देंगे, कौन सा उसका कलर होता है स्टडी किट का, आपको याद रखना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट 2-3 टाइम से टॉपिक्स क्लियर करते हैं टीचर्स, बट यहाँ से क्वेश्चन नहीं आ रहा है। इस बार मेरे को चांस है यहाँ से क्वेश्चन आएगा, चांस लग रहा है, हाई चांस। ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ गोनोकोकल, वेरी इंपॉर्टेंट, सेफ्ट्रैक्सोन। गोनोकोकल इन्फेक्शन आपको अच्छे से करना है माइक्रो में। गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस वाला केस, वो सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ पुल्मोनरी हाइपरटेंशन, बोसेंटन। आरडी ऑफ आयोडीन इन प्रेगनेंसी 250, ये याद रखना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल ऑफ हाई एन आयरन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस इज क्रोनिक किडनी डिजीज, डायबिटिक केटोसिडोसिस, पॉइजनिंग। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि इस बार नॉर्मल एनायन गैप पूछ दे, एनायन गैप का पूछ दे। ये आयन सेट में भी इस बार आया है। बहुत सारे आयन सेट में क्वेश्चन यहाँ से हेल्प हुए हैं। आई विल ट्राई टू फिगर इट आउट। मोस्टली मैंने सब क्वेश्चन अभी नहीं देखा है, बट 50-60 क्वेश्चन आई सॉ ऑफ आयन सेट, एंड आई फाउंड दैट 10 to 12 क्वेश्चन फ्रॉम दिस वन लाइनर्स एंड टॉपिक सेक्शन। मैं देखा कि उसमें से दिखा, तो एफएमजी में तो लाइक 80 to 90% आप समझ लो चांस है कि बहुत क्वेश्चन आपको इससे हो जाएंगे। पास होने के लिए अगेन आई एम सेइंग दिस वन लाइनर टॉपिक सेक्शन एमसीक्यू सेक्शन इज सफिशिएंट। आप जीरो पे हो, आप हीरो हो सकते हो। एक महीना में अगर आप 8 घंटा 7 घंटा आप दो, पास हो जाओगे। ये आपको सबको पता है। हेलर्स मायोटोमी एक्लेसिया कार्डिया के लिए यूज करते हैं। हैमस्ट्रेंग मायोटोमी सीएचपीएस के लिए भी ऑलरेडी डिस्कस इन लाइक वन लाइनर फॉर्म आल्सो। ये सकी स्टेप है, वेरी इंपॉर्टेंट इमेज बेस्ड क्वेश्चन। कर्व 65 इज यूज्ड टू असेस निमोनिया, ये कर्व 65 का पूरा वैल्यू आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। निमोनिया से क्वेश्चन 500% इस बार आएगा, निमोनिया से क्वेश्चन जाइट का वो। तो आपको ये जब तक ये नहीं याद रहेगा तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं इस पे। और फिर से निमोनिया के वो ट्रीटमेंट बेसिस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, माइल्ड मॉडरेट सीवियर पे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम कम्स अंडर विच पार्ट ऑफ हेल्थ सेंटर? पीएससी। इस बार मेरे को ऐसा लगता है यहाँ से फिर से क्वेश्चन आएगा। सो लाइक एवरी क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट। हाउ टू अप्रोच, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर वन लाइनर्स एंड ट्राई टू इंटीग्रेट इन योर माइंड कि अगर इससे अगर क्लिनिकल क्वेश्चन आता है तो किस टाइप से आ सकता है। इसलिए हम मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ कि इस पे कौन कौन सा और अदर क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, किस वे से फ्रेम हो सकता है। क्लोरीन वैल्यू इन स्विमिंग पूल 0.5 इन ड्रिंकिंग वाटर, और 1 होता है स्विमिंग पूल में। तो यहाँ से टॉपिक टच किया है इस बार जुलाई में, या ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्लोरीन और फ्लोरीन का वैल्यू आपको मस्ट याद करना ही करना है, ड्रिंकिंग वाटर में, स्विमिंग पूल में, या फिर ये सब कॉमन कॉमन से जो है वैल्यूज हैं आपको याद रखना है। मोस्ट स्पेसिफिक मार्कर ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर, ये इसमें कौन कौन सा जीन इन्वॉल्व होता है, वी ऑलरेडी कवर्ड इन लाइक व्हाट्सएप चैनल ऑल्सो। आज कोलोरेक्टल कैंसर काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी अमेनोरिया, प्रेगनेंसी, एसएमएन सिंड्रोम, लैक्टेशन। दे विल गिव लाइक क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी अमेनोरिया एक्सेप्ट। ये तीन एटलीस्ट आपको याद रखना है। टाइप्स ऑफ सबलक्शन ऑफ लेंस, मार्फन सिंड्रोम में किस टाइप से सबलक्शन होता है? सुपेरो टेम्पोरल। इन्फेरो टेम्पोरल किस में होता है? कैन एनीबडी विल राइट, anybody can write like superior temporal तो इसमें, but inferior temporal is seen in। Again I'm waiting for some more answer also, Samir. It's very good, going very nice, every time active, answering every time fast। now write properly, like जिन्हें नहीं पता होगा वो कंफ्यूज जाएंगे, लाइक होमोसिस्ट होमोसिस्टीन से। लाइक प्रॉपर टर्म प्लीज, फुल टर्म किसमें यूज करते हैं, आई मीन किसमें वो होता है, लाइक किसमें फाइंडिंग वो देखने को मिलता है। although yes, it's entire phase तो बच चुके हैं, but still I find 20+ students are here। although ये YouTube पे आएगा, but still ये लाइव सेशन का एक अलग मजा होता है। और this is the, I am again saying, this is the proper real and genuine पीडीएफ ऑफ बूस्टर सीरीज। आप कहीं भी इसको देखते हो, कोई भी स्टूडेंट आपसे पूछता है, यू हैव टू से लाइक दिस इज द रियल पीडीएफ ऑफ बूस्टर सीरीज, और उन्हें बोलो कि यूट्यूब पे सेशन है उसको देख लो। बूस्टर सीरीज तो एटलीस्ट ज्वाइन कर लो, तो पास होना फिक्स है।
I know that yes, many students are joining coaching, they are attending coaching with different teachers. All are good teachers, all are good coachings, but still the booster series contents we are giving it इन अ वेरी नाइस अ प्रॉपर वे. अगर स्टूडेंट कुछ नहीं करके बस एक एक चीज हम लोग का ABCD जो भी हम लोग करा रहे हैं कर ले, पास होने के लिए सुपर 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 इनफ. और आप लोग को लगा होगा लाइक यस होमोसिस्टेनुरिया इज, आपको अभी तक लगा होगा कि वन लाइनर्स कितने इंपॉर्टेंट हैं. अभी तो 200 ही हुए हैं अप्रॉक्स हम लोग पहुंचने को है. अब तो स्टिल वी हैव लाइक 1400 to 1600. इसी से आपके सारे क्वेश्चन अप्रॉक्स पास होने के लिए बन जाएंगे अगर आप सही से इस वन लाइनर को यूज करो तो. और तभी जो है हम लोग इसको हम चाहते हैं डिस्कस करना एक अलग अलग वे से, ताकि आपको अदर क्वेश्चन में, जैसे आपको मैंने यहाँ बताया सुपीरियर टेम्पोरल इसमें होता है, इंफीरियर टेम्पोरल इसमें, तो क्वेश्चन वो पूछ सकता है. चाइल्ड कैसा कुछ केस देगा और पूछेगा कि इंफीरियर टेम्पोरल सबलक्सेशन ऑफ लेंस इज सीन, या फिर तो उस टाइप से यू कैन फाइंड इट इजिली. क्लिनिकल क्वेश्चन भी आपके सही होते हैं, तो ट्राई टू इंटीग्रेट, आई एम अगेन सेइंग ट्राई टू इंटीग्रेट वन लाइनर्स विद क्लिनिकल क्वेश्चन ऑल्सो. अगर इस पे क्लिनिकल क्वेश्चन आता है तो कैसे हम अप्रोच करेंगे. कोलोन कैंसर का केस है, कुछ ऐसा देगा, उसका मार्कर पूछ सकता है, जीन इन्वॉल्व पूछ सकता है. Reservoir of Japanese encephalitis is big. Can anybody write like vector of Japanese encephalitis? Reservoir of Japanese encephalitis is big, but vector of Japanese encephalitis. Culex. Yes, is Culex, but full term, if they will confuse you, right? Culex, sorry, Culex species से अगर वो confuse करना start कर दें, how you can write, how you can catch कि real जो है vector है. बिकॉज क्यूलेक्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं. क्यूलेक्स विस्नोई, क्यूलेक्स सीडो विस्नोई, क्यूलेक्स ओरिएंटालिस, क्यूलेक्स पेपेंस, क्यूलेक्स क्यूनक्यूफेसिएटस. तो कौन सा क्यूलेक्स में कौन सा. ऐसे याद रखो आप क्यूलेक्स ट्वीटा करके. टर्म तो बड़ा है, ट्वीटा नरनाइज है बहुत बड़ा टर्म है लाइक. आप ट्वीटा याद रखो. यस, क्यूलेक्स ट्वीटा. ट्वीटा टर्म दिखा तो आपको माइंड में रखना है. क्यूलेक्स का कोई भी टाइप हो, ध्यान उत्तर ज्यादा नहीं देना है बिश्नोई सूडो बिश्नोई पेपेंस के तरफ, और ट्वीटा नहीं। आपको ध्यान में रखना है. सो लाइक दिस, ये आपको इस वे से हेल्प होगा. स्ट्रेन यूज देखो आप यहाँ पे कैसे ऑनलाइन आपको हेल्प कर रहा है. वाई आई एम डिस्कसिंग, बिकॉज आपको इस वे से हेल्प होगा. आपने यहाँ रिजर्वायर कंप्लीट कर लिया, वेक्टर मैंने पूछ लिया वो आपने कंप्लीट कर लिया, स्ट्रेन कौन सा कंप्लीट कर दिया. इससे ज्यादा क्या ही क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें. EYQ है मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ऐसे ऑनलाइन आपको हेल्प होगा. अदर क्वेश्चन क्या आ सकते हैं वो आपको माइंड में रखना होगा. एंडरसन पैटरसन बॉडी सीनी मोलस्कस क्वांटाइजेशन, ये ही इंपॉर्टेंट है. धर्मा में इस बार यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस 100%. वो हिंट भी दे सकते हैं. एंडरसन पैटरसन बॉडी इज सीन, आइडेंटिफाई द डायग्नोसिस और व्हाट इज डायग्नोसिस हियर, ऐसे कुछ करके. 75-year-old patient with benign prostate hyperplasia, appropriate management times seen. Mechanism of action of timolol is beta 2 blocker. 210 तक करेंगे. Mechanism of action of timolol beta 2 blocker. Top choice of cerebral malaria during pregnancy, very 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 important. Drug of choice for cerebral malaria during pregnancy is quinine. मलेरिया कुछ ऐसा केस दे देंगे और पूछेंगे लास्ट में सेरेब्रल मलेरिया उसको हुआ है, प्रेग्नेंट फीमेल है, कौन सा ड्रग यूज करेंगे. क्यूनिन. Piles transport media is for streptococcus pyogenes. ये आपको कैसे हेल्प होगा. बड़ा क्लिनिकल किस क्वेश्चन दिखता है, बाइल्स ट्रांसपोर्ट मीडिया आपको याद रखना है. कुछ ऐसा टर्म हिंट दिखा आपको फटाक से सोचना है. स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस का केस है. मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म implicated in osteomyelitis is Staph aureus. Where flex is used for which disease is Staph aureus. Staph aureus जो है इसमें यूज होता है ये. Where flex most common cause of travelers diarrhea is E. coli.
ये सबको पता होता है ऑलमोस्ट पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म फॉर फ्रेंच फीवर इट्स क्वांटाना वेक्टर. Adult larynx is located at which level? It's at C3 to 6 level. If they will ask like child, ऐसा ही एकदम सेम क्वेश्चन अगर फ्रेम कर दिया, अगर पूछ दिया यहाँ पे adult की जगह चाइल्ड, चाइल्ड larynx is located at which level? P1. What is your answer? Please write in comment box also. Yes, write in comment box. Very good. Still, it's 2 o'clock, but nice that students are still active. Many students here, C6. Anybody more? Anybody else? Can write in comment box. I am waiting for your answer. Anybody can write. C6. Yeah. Anybody else who can write? और कोई है जो और लिख सकता है? आई थिंक any guys skipping C2 to C3. C2 to C3. I'm waiting. Okay, so C2 to C3, just above this. Abduction of vocal cord is done by posterior cricoarytenoid. It's very important PYQ also. Agovan's procedure is done for conal atresia. ये पूछ सकता है वन लाइनर बेसिस पे, या फिर ऐसा दे देंगे conal atresia is suspected. Big clinical case. Identify the technique involved या identify the procedure involved here. So आपको ये याद रखना है. Image based question they can ask also. तो आई थिंक अभी तक 210 क्वेश्चन हम लोगों ने किया जल्दी जल्दी में, और क्वेश्चन बेसिस अप्रोच पे, आई मीन वन लाइनर्स कैसे आ सकते हैं, क्लिनिकल क्वेश्चन इस पे कैसे आ सकते हैं, और इस टॉपिक से रिलेटेड और अदर क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं. आई थिंक अभी तक आपको काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा. कैन एनीबॉडी से वाज इट हेल्पफुल और नॉट टिल नाउ? अभी तक जो हम लोगों ने 210 क्वेश्चन को डिस्कस किया, आपको हेल्प हुआ या नहीं? इससे क्या होगा कि चीज़ें आपको काफ़ी क्लियर होंगी. लाइक कि हम लोग प्रीवियस ईयर टॉपिक बेस्ड अप्रोच है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड अप्रोच. अभी तक आपने जितने भी टॉपिक देखा है 210 में, आपको ऐसा फील हुआ होगा, जनरली फील ऑनलाइन पीडीएफ पढ़े के पढ़े रह जाता है. आई नो द रियलिटी दैट बहुत बार ऐसा होता है कि पीडीएफ तो सबके पास होता है, बहुत सारे पीडीएफ होते हैं, बट स्टूडेंट उस पीडीएफ को नहीं यूज कर पाता है, पढ़ ही नहीं पाता है. पता है आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, वन लाइनर ही तो है, 1000-1200 क्वेश्चन है, कल देखेंगे, परसों, और फिर वो पढ़ा रह जाता है. इस ये सेशन से क्या हेल्प होगा आपको, अगर आप अटेंड करते हैं तो एटलीस्ट जब आप यूट्यूब से अगर इसको रिवाइज करेंगे, जैसे पीडीएफ आपके टैब में खुला होगा या फोन में खुला होगा, अगर कोई टैब सामने होगा, आप यूट्यूब से देखोगे तो हाँ, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. फिर आप जब क्लिनिकल क्वेश्चन बनाओगे, वहाँ भी आपको वन लाइनर में क्लिनिकल क्वेश्चन, बड़े बड़े जो क्वेश्चन होंगे उसमें काफ़ी हेल्प करेगा, काफ़ी काफ़ी हेल्प. जैसे हमने ये छोटा छोटा टर्म जो बताया है, वो काफ़ी हिंट उसमें रहता है. स्पाइक्स मीडियम इज प्रेजेंट, और लाइक कैरी प्लेयर मीडियम इज प्रेजेंट. तो वो आपको इंटीग्रेट करना आना चाहिए. इसलिए हमने ऑनलाइन को चाहा डिस्कस करना, बिकॉज आपको ये एटलीस्ट पता चले कि इस टॉपिक पे कौन कौन सा क्वेश्चन किस वे से पूछा जा सकता है, या अगर क्लिनिकल क्वेश्चन आता है तो ये ऑनलाइनर वहाँ कैसे हेल्प करेगा,
जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया रेटिनोब्लास्टोमा का, सीडोविंस्टर रोजेट सिंसीन, और फिर उसके बाद से उस पर जीन पे क्वेश्चन आ सकता है, जीन कौन सा इन्वॉल्व होता है, या एज ए हिंट दे सकते हैं, या फिर उसके वो मोस्ट कॉमन और वाइटल ट्यूमर ऐसे करके पूछ सकते हैं। फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन चॉइस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ऐसे जापानीज इंसेफेलाइटिस का आपने देखा है, वेक्टर, उसके रिजर्वायर, उसके जो है अलग अलग मतलब क्वेश्चन किस वे से उस पर आ सकता है, तो हम लोगों ने उसको क्लियर किया है। तो ऐसे चीज़ें को हेल्प होती है। ग्रुप में पीडीएफ, आई थिंक इट्स ऑलरेडी इन ग्रुप, बूस्टर सीरीज ग्रुप। और मैं फिर से गारंटी बोल सकता हूँ कि अगर आप अभी से कुछ नहीं कर रहे हैं वन लाइनर को अच्छे से, बस ये ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन मैं कवर करूंगा यूट्यूब पे, तो अपने दोस्तों के बीच बताओ कि एटलीस्ट ये सेशन को देख लें। और दोस्तों के पास अगर ये पीडीएफ है तो उनको बोलो कि अच्छे से यूज करना। कैसे यूज होगा, जब वो लाइव सेशन ये फ्री में अटेंड करेंगे यूट्यूब पे, जब अपलोड होगा कल, तो आप अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करो कि एटलीस्ट इतना जरूर कर ले सब कोई, तो बहुत हेल्पफुल सबके लिए होगा। क्योंकि इसमें हर एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर टॉपिक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड है। डिटेल्स में भी मैं बता रहा हूँ कि किस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। इट्स लाइक अबाउट टू 2:30 बजने वाले हैं, 2:30, बट स्टिल नो प्रॉब्लम। अभी थोड़ा लेट हो गया था डिसाइड करने में, बिकॉज लाइक इसमें वो प्रॉब्लम नहीं हो पा रहा था। लाइक अभी ठीक था क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम दिन में शाम में हो रही थी, हॉस्टल एंड ऑल प्रॉब्लम होती ही है, बट अभी रात में नेटवर्क सही था तो ट्राई किया। बट फ्रॉम टुमारो और डे आफ्टर टुमारो वी विल स्टार्ट ऑन टाइम सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट कैन पार्टिसिपेट।